So next question, an air bubble in a glass slab with refractive index 1.5 near normal incidence is 5 centimeter deep when waved from one surface and 3 centimeter when waved from other surface, मतलब from the opposite face. The thickness of the slab in centimeter is. तो this is the situation. हमारे पास एक ग्लास स्लैब है, राइट? ओके, उसको जब उसमें एक एयर बबल है, सो वी हैव, लेट अस से वी हैव एन एयर बबल ओवर हियर, ऐसा कहीं तो है। उसको जब हम एक फेस से देख रहे हैं तो हमको इसका एपरेंट लोकेशन, एपरेंट डेप्थ, मैं मान लेता हूं ये है एच एपरेंट 1, इट हैपन्स टू बी 3 सेंटीमीटर। उसको जब मैं दूसरे साइड से देख रहा हूं तो आई सी द सेम at a distance of 5 centimeter. H apparent 2 is 5 centimeter. Given this much of information, आपको पूछा है what is the thickness of slab. हमको पता है जब मैं एक साइड से, साइड 1 से देख रहा हूं, H apparent 3 है, लेकिन रियल डेप्थ is HR1, रियल हाइट। जब मैं दूसरे एंड से देख रहा हूं तो दिस इज HR2। मतलब मुझे थिकनेस मीन्स मुझे ये पूरा का पूरा साइड चाहिए, यहां से लेके यहां तक, दैट इज थिकनेस ऑफ स्लैब, राइट? तो व्हाट आई ऑलरेडी नो इज कि अगर हमको थिकनेस ऑफ स्लैब T चाहिए तो दैट इज HR1 प्लस HR2, राइट? एंड वी ऑलरेडी नो relation between real depth and apparent depth. So if you remember, real height upon apparent height was nothing but refractive index of the material of prism, right? तो हम जब इसको पहले केस में अप्लाई करेंगे तो हम बोलेंगे HR1 is mu times of H apparent 1 and HR2 is equal to mu times of H apparent 2. मतलब thickness will be HR1 मतलब mu H apparent 1 plus mu H apparent 2. So I'll call this as equation number 1, equation number 2, equation number 3. फिर हम बोल देंगे from 1, 2 and 3 we get this equation. So from 1, 2 and 3, तो म्यू हमको बोला है 1.5, एपरेंट 1 3, एपरेंट 2 8 into 1.5 12, 8 1 जा 8, 8 halves of 4, 8 plus 4 is 12. ऑप्शन नंबर डी हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो इज नथिंग डिफिकल्ट। Question number 26. The angle of incidence for a ray of light at refracting surface of a prism is 45. Angle of incidence 45. Angle of prism 60 degree. If the ray suffers minimum deviation through prism, okay, as soon as you hear this word minimum deviation, you should immediately understand I is equal to A plus delta M by 2. R is equal to A by 2. तो prism formula mu equal to sine of A plus delta M by 2 upon sine of A by 2. ये minimum deviation conditions में ही लिख सकते हो।
मिनिमम डेविएशन कंडीशंस आपको अच्छे से याद होना चाहिए, हम 3 से 4 बार रिपीट कर चुके हैं, राइट। So if the ray suffers minimum deviation to prism, the angle of minimum deviation and refractive index of the material of prism is. तो सबसे पहली बात तो ये है, as I told you, ये जो है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ही तो है, राइट। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए क्या मेहनत करनी है, कुछ नहीं। साइन ऑफ आई दिया है 45, साइन ऑफ a/2 ए दिया है 60/2, sin 45 is 1/√2, sin 30 is 1/2, 2/√2 is √2, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज √2। और एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया है, ए दिया है, डेल्टा एम पूछा है, कौन सी बड़ी बात है फिर। तो आप लिखोगे इस इक्वेशन से, यू कैन राइट फ्रॉम दिस इक्वेशन 2i is equal to a plus delta m, मतलब डेल्टा m is equal to 2i minus a, 2i 2 into 45 minus 60, 90 minus 60 is 30, तो 30 और √2 ऑप्शन नंबर बी, राइट, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, for the angle of minimum deviation of a prism to be equal to its refracting angle, मतलब a equal to delta m होने के लिए the prism must be made up of a material whose refractive index, the first thing that you should know is mu is equal to, actually we have solved this halfway, वो in the form of question था, mu is equal to sin of a plus delta m by 2, लेकिन a और delta m इक्वल है तो a plus a by 2 अपॉन sin of a by 2, फिर हमने इसको लिखा था ऊपर sin a, क्योंकि 2a by 2 is sin a अपॉन sin a by 2, फिर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज की थी which tells you that sin theta is 2 sin theta by 2 into cos theta by 2 अपॉन sin of a by 2, फिर ये कैंसिल हो जाएगा, फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टर्न्स आउट टू बी basically 2 cos of a by 2। अब मिनिमम के लिए और मैक्सिमम के लिए what should be the values of a, a की वैल्यू या तो 90 डिग्री होगी, you will have a right angled prism something like this where angle of prism is 90, or you may have a prism like this जिसका एंगल a ही 0 है, मतलब if I put 2 cos of 90 by 2 cos 45, cos 45 is 1/√2, 2/√2 is √2, या फिर मैं cos of a की 0 लूंगा तो cos 0, cos 0 is 1, तो 2, it lies between 2 and √2, no big deal, सिंपल। क्योंकि प्रिज्म कैसे बनता है, बताता हूँ प्रिज्म कैसे बनता है, हाउ डू यू मेक प्रिज्म्स। You take one line, you take another line, angle 0, बढ़ाते जा रहे हो बढ़ाते जा रहे हो बढ़ाते जा रहे हो, this is the maximum angle you can have, that is 90, इससे ज्यादा करोगे तो एंगल ऑफ प्रिज्म तो बढ़ेगा, लेकिन आपको पता है कि कॉस जो है उसकी वैल्यू रिपीट होना चालू हो जाती है ना। हाँ, तो दिस इज हाउ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो प्रिज्म, पहले तो प्रिज्म अच्छे से समझना जरूरी है, तब समझेगा दैट वैल्यूज ऑफ ए विल बी 0 एंड 90। तो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर बी। A ray of light is incident at an angle of incidence I on one face of a prism of angle A and emerges normally, ये important question है, from the opposite face if the refractive index of prism is n, the angle of incidence is। तो ये मैं बताने वाला हूँ because it is simple and easy, it is very simple question। मैंने पहले आपको बताया भी है एक बार, what does normal emergence means,
इसका मतलब ये होता है कि आपका रे ऐसा आया था, फिर I'll draw this little like this. The ray came like this and then refraction होके वो opposite surface को perpendicularly बाहर निकला है। उन्होंने बोला है रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, मतलब यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस ओवर हियर इज आई, दिस इज R1 इफ यू रिमेंबर। और क्या बोला है, इज इंसिडेंट ऑन वन फेस ऑफ प्रिज्म, जिसका एंगल ऑफ प्रिज्म ए है, मतलब दिस एंगल हियर इज ए। गुड, ओके। देन एंड एमर्जेस नॉर्मली, नॉर्मल एमरजेंस मतलब E की वैल्यू 0। क्यों? क्योंकि आप हमेशा नॉर्मल से ही एंगल मेजर करते हो। E की वैल्यू 0 मतलब R2 की वैल्यू 0। E और R2 0 है, और हमको पता है, हमको क्या पता है, हमको पता है R1 प्लस R2 की वैल्यू, R1 प्लस R2 की वैल्यू प्रिज्म में A होती है, और R2 0 है तो R1 की वैल्यू A आ गई। हमें क्या पूछा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। मतलब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस सरफेस पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे। व्हाट इज स्नेल्स लॉ? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ पे n बोला तो मैं n लिख रहा हूं, तो कैसे करते हो आप, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, ये मीडियम 1, ये मीडियम 2, into sine of angle in medium 1 equal to n2 sine of angle in medium 2, but n1 तो एयर है तो sin I, n2 तो n है sin R1, बट R1 तो हमारे पास A आया। वेरी गुड, राइट। तो n इज इक्वल टू साइन A, नहीं साइन I बाय साइन A, करेक्ट। अब अगर I की वैल्यू स्मॉल होगी और A की वैल्यू भी स्मॉल होगी, राइट, करेक्ट, तो आप बोल सकते हो n इक्वल टू आई बाई ए, मतलब I इज इक्वल टू एन ए, मतलब ऑप्शन नंबर ए हो गया सॉल्व। राइट, ओके। If you are not able to see properly, you can take no issues. So it is this how you can solve. तो ऐसा है, हमारे पास प्रिज्म था, प्रिज्म में अगर रे प्रिज्म से नॉर्मली एमर्ज हो रहा है, नॉर्मल एमर्जेंस मतलब एंगल ऑफ एमर्जेंस E की वैल्यू 0। क्यों 0? क्योंकि एंगल हम लोग कभी भी नॉर्मल से ही मेजर करते हैं, और रे नॉर्मल के डायरेक्शन में ही बाहर जा रहा है, तो एंगल 0, 90 नहीं। आप कभी भी सरफेस से एंगल नहीं मेजर करते, आप नॉर्मल से करते हो। E 0 है, E 0 है तो R2 0 है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इस AC फेस पे अगर मैं स्नेल्स लॉ अप्लाई करता तो मुझे मिलता, ये मीडियम 3 बोल देते हैं इसको, तो मिलता n3 sin E इक्वल टू n2 sin R2। जब E 0 है और n3 एयर है, 1 into 0 is 0, तो sin R2 0, तो R2 0, मतलब एंगल ऑफ एमरजेंस 0 है, तो उस केस में R2 की वैल्यू भी 0 है। अगर R2 की वैल्यू 0 है तो प्रिज्म में हमेशा R1 प्लस R2 A होता है, और R2 0 है तो R1 की वैल्यू आ गई A। फिर हमने AB साइड पे स्नेल्स लॉ अप्लाई किया, तो n1 sin I इक्वल टू n2 sin R1, n1 is 1 बिकॉज एयर था, sin I n, n2 is n क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मेटल ऑफ प्रिज्म को n बोला है, sin R1, sin R1, R1 की वैल्यू a है, तो n इक्वल टू sin I बाय sin A। अगर एंगल स्मॉल है, फॉर स्मॉल एंगल्स, for small angles I is equal to sin I equal to I, sin A equal to A, तो n equal to I by A, तो I equal to n into A, ऑप्शन नंबर A खत्म। Did I make it clear?
No answer. Okay. Angle of prism is 30 degree and refractive index is √2. A 30 है और म्यू की वैल्यू √2 है. वन ऑफ द सर्फेस इज सिल्वर्ड, पॉलिश कर दिया हमने, वहां से लाइट बाहर नहीं जा पाएगा अब. एट व्हाट angle of incidence a ray should be incident on one surface so that the reflection from the silver surface retraces its path. मतलब जो क्वेश्चन है ये एग्जैक्टली इसके साथ रिलेटेड है. बट वी डोंट नीड टू शो दिस, इसकी जरूरत नहीं है अब. ओके तो हमने क्या किया, एंगल ऑफ प्रिज्म ए की वैल्यू 30 डिग्री, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब n की वैल्यू √2, वन ऑफ द सरफेस इज सिल्वर्ड, हमने इसको पॉलिश कर दिया, मतलब यहां से लाइट बाहर नहीं जाएगा अब. राइट. एट व्हाट एंगल ऑफ इंसिडेंस अ रे शुड बी इंसिडेंट, मतलब I की वैल्यू फाइंड करनी है. राइट. ऑन वन सरफेस सो दैट आफ्टर रिफ्लेक्शन, मतलब ये लाइट ऐसा गया और वहां से रिफ्लेक्ट होके वापस आया. सो रिफ्लेक्शन क्यों हुआ, क्योंकि हमने उस साइड को सिल्वर मतलब पॉलिश कर दिया, तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस से सेम डायरेक्शन सेम पाथ से अपोजिट डायरेक्शन में आना चाहिए, रिट्रेस करना चाहिए. रिट्रेस कब होगा, जब ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R2 0 होगा, मतलब नॉर्मल इंसिडेंस के लिए ही होता है वो. हाँ, तो आपके पास मिरर है, आप मिरर के सामने खड़े रहकर आप बार बार बना रहे हो, क्या कर रहे हो, मतलब ये आपसे रह गया, रिफ्लेक्ट होके वो रिट्रेस हुआ. हाँ, तो फिर रिट्रेस के लिए नॉर्मली लाइट इंसिडेंट होना चाहिए, मतलब जो सिल्वर्ड फेस है वहां पे परपेंडिकुलर जाएगा तो ही रिफ्लेक्ट होके उसी पार्ट में आएगा. अगर रे ऐसा जाता तो फिर वो रिफ्लेक्ट होके यहाँ आ जाता. राइट. तो देखो, रिट्रेसिंग का मतलब R2 की वैल्यू 0 ये होनी चाहिए. ओके. तो एट व्हाट एंगल ऑफ इंसिडेंस I की क्या वैल्यू होगी, वापस से वही स्नेल्स लॉ लगाओ, n1 sin I equal to n2 sin R1. But as you already know R2 is 0, तो R1 plus R2 is A, मतलब R1 is again A. और ये तो आपका 1 है, n1 is 1 है ना, तो n1 is 1. साइन I तो फाइंड ही करना है I. n2 की वैल्यू बोली है √2, A की वैल्यू बोली है आपको R1 is A, है ना, R1 is A and A is 30 degree. So sin of 30, sin 30 is 1 by 2, तो √2 by 2 मतलब 1 by √2, मतलब I should be 45 degrees, क्योंकि sin I की वैल्यू 1 by √2 45 पे होती है. ऑप्शन नंबर C. Correct? Good. So this is how you can solve this question. How n is 1, क्योंकि प्रिज्म n1, प्रिज्म के बाहर एयर है इसलिए n1 की वैल्यू 1. कुछ नहीं बोला है मतलब 1, कुछ नहीं बोला, या तो एयर होगा या फिर वैक्यूम होगा. एयर या वैक्यूम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है इसलिए. तो बिकॉज इन्होंने ऐसा नहीं बोला ना कि प्रिज्म इज केप्ट इन वाटर, तो वाटर बोला था तो n1 की वैल्यू 4/3 लिखते हैं. नहीं बोला है मतलब एयर या वैक्यूम होगा तो n1 की वैल्यू 1 होगी. For a prism of refractive index 1.732, the angle of minimum deviation is equal to angle of prism. The angle of prism is. Okay, so this is a simple question. Why simple? Because for a prism of refractive index 1.732, the angle of minimum deviation is equal to angle of prism.
ए और डेल्टा एम इक्वल बोला है। अभी अभी हमने जस्ट नाउ लिटिल वाइल अगो ए इक्वल टू डेल्टा एम के लिए म्यू हमने प्रूव किया है 2 cos of a by 2। आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर और नॉट, ये हमने अभी अभी प्रूव किया है। म्यू इक्वल टू 2 cos of a by 2। तो फॉर a इक्वल टू डेल्टा एम म्यू इक्वल टू 2 cos of a by 2, राइट। हमको क्या पूछा है? एंगल ऑफ प्रिज्म, और ये दिया है 1.732 इक्वल टू 2 cos of a by 2। 1.732 होता है √3 बाई 2 इक्वल टू cos of a by 2, क्योंकि वो 2 को सिर्फ शिफ्ट कर दिया मैंने वहां पे। √3/2 cos की वैल्यू कब आती है? कब आती है? 30 डिग्रीज पे आती है। 30 पे आती है तो cos of a by 2, तो 30 इज इक्वल टू a by 2, तो a इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो was so simple to solve this question. This question we have already done, but I want you to do it again. Refracting angle of prism A and refractive index of material of prism is cot A by 2, angle of minimum deviation is. Okay, so this question can be solved as follows. Refracting angle of prism is A, refractive index is cot of A by 2, angle of minimum deviation. The time when you hear angle of minimum deviation, मतलब prism formula apply करना पड़ेगा, that is sine of A plus delta m by 2 upon sine of A by 2, but mu आपका बोला है cot of A by 2, that is sine of A plus delta m by 2 upon sine of A by 2. Cot is cos upon sine. Cos of A by 2 upon sine of A by 2 is equal to sine of A plus delta m by 2 upon sine of A by 2. कैंसल। cos of A by 2 को लिखने के लिए आप इन टर्म्स ऑफ साइन लिख सकते हो इसको, इफ यू वांट। तो आपको पता होगा साइन ऑफ 90 माइनस A by 2 लिखोगे। क्यों ऐसा लिखेंगे? क्योंकि cos थीटा कैन बी रिटन एज साइन ऑफ 90 माइनस थीटा या फिर साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, लेकिन साइन ऑफ 90 प्लस थीटा नहीं लिख सकते क्योंकि इट गोज इनटू सेकंड क्वाड्रेंट। ये अच्छे से समझ लेना। ओरिजिनल फंक्शन कौन सा है? ओरिजिनल फंक्शन cos है ना, लेफ्ट हैंड साइड पे ओरिजिनल क्या है? cos। यहाँ पे cos पॉजिटिव है क्या? cos पॉजिटिव है। cos पॉजिटिव पहले क्वाड्रेंट में होता है, दूसरे में नहीं। इज इट क्लियर? cos पॉजिटिव कहाँ होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड में नहीं। तो 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा में से कौन सा एंगल पहले क्वाड्रेंट में है? 90 माइनस थीटा, क्योंकि पहले क्वाड्रेंट में एंगल 0 से 90, दूसरे में 90 से 180। यू शुड ऑलवेज नो बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये एंगल कभी भी आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर करते हो तो पहला क्वाड्रेंट में 90 डिग्री, दूसरे में 90 से 180, तीसरे में 180 से 270, फिर 270 से 360। तो ओरिजिनल फंक्शन जो हमारे पास यहाँ पे cos A by 2 है, मतलब पॉजिटिव है, और A by 2 मतलब थीटा है। आपको पता होना चाहिए कि we will be using cos of A by 2 as sine of 90 minus A by 2, क्योंकि 90 प्लस A by 2 भी cos थीटा आता है, लेकिन ओरिजिनल फंक्शन cos है, उसका साइन पॉजिटिव है। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं वापस समझा रहा हूं आपको। अगर मेरे पास साइन ऑफ 90 माइनस थीटा लिखा तो भी cos थीटा, साइन ऑफ 90 प्लस थीटा लिखा तो भी cos थीटा।
लेकिन यहाँ पे ओरिजिनल फंक्शन साइन था, साइन पहले दूसरे दोनों में पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, राइट, करेक्ट। लेकिन जब मैं उल्टा लिखूंगा, मैं cos थीटा को लिख रहा हूं एज इन टर्म्स ऑफ साइन, तो मुझे देखना पड़ेगा कि cos पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर cos पॉजिटिव है तो 90 माइनस थीटा, अगर cos नेगेटिव है 90 प्लस थीटा। तो ये बेसिक मैथमेटिक्स के बिना नहीं होता है, और ये नीट में पूछा गया क्वेश्चन है। यस, तो इसलिए मैं बोल रहा था कि मैथमेटिक्स थोड़ा सा चाहिए। सो cos ऑफ a बाई 2 को लिखा मैंने sin ऑफ 90 माइनस a बाई 2, यहाँ पे आ गया sin ऑफ a प्लस डेल्टा m होल बाई 2, तो ये आ गया 90 माइनस a बाई 2 इक्वल टू साइन ऑफ, साइन तो गया, a प्लस डेल्टा m बाई 2, तो 2 मतलब 180 माइनस a बाई 2 इक्वल टू a प्लस डेल्टा m बाई 2, ए भी गया, तो डेल्टा m इज 180 माइनस a, और ये वहां पे शिफ्ट होगा तो माइनस a, मतलब माइनस 2a, तो ये आपका आएगा 180 माइनस 2a, ऑप्शन नंबर A. This is how you are supposed to solve this. Next question. A beam of light composed of red and green ray is incident obliquely. Obliquely मतलब at some angle, मतलब normal incidence नहीं है, grazing भी नहीं है ना? At a point on the face of a rectangular glass slab. हमारे पास एक rectangular glass slab है. Oblique incidence का मतलब समझ लो. Oblique incidence का मतलब मैं समझाता हूँ पहले. The thing is, अभी रे इंसिडेंस कैसा हो सकता है? ऐसा भी इंसिडेंस हो सकता है? इसको बोलते हैं ग्रेजिंग इंसिडेंस, सरफेस को टच करके ग्रेजिंग। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 90, क्योंकि आप नॉर्मल से मेजर करते हो, इसको ऑब्लिक नहीं बोलते, दिस इज ग्रेजिंग इंसिडेंस। फिर ऐसा भी इंसिडेंट हो सकता है, नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0, ग्रेजिंग के लिए 90, यहाँ पे 0। अब ऐसा है कि you may have like this also, तो this is called as oblique incidence। ये oblique है, oblique मतलब when angle of incidence is between 0 and 90, that is oblique। Okay, so this is oblique incidence। So you have a ray of light, a beam of light composed of red and green ray is incident। मतलब ये जो लाइट है, ये जो बीम है, इट इज मेड अप ऑफ 2 कलर्स, तो इसके लिए मैं वो दोनों ही ग्रीन और रेड छोड़ के कुछ और ही यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, अदरवाइज इट विल क्रिएट कंफ्यूजन। तो ऐसा है, राइट। Is incident obliquely at a point on the face of rectangular glass slab. When coming out on the opposite parallel face, the green and red emerge from। अब ये ऐसा और ऐसा emerge होगा, या फिर ये 2 points propagating in different directions, 2 points propagating in 2 parallel directions, 1 point propagating in 2 different directions। मतलब उनका बोलने का मतलब ये है कि यहां पे आने के बाद रेड और ग्रीन अलग अलग हुए, मतलब ग्लास स्लैब के अंदर एक थे, ऐसा वो बोलना चाहते हैं। हाँ, ऐसा वो बोलना चाहते हैं, राइट। 1 point propagating in same direction। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे ही लाइट ने, उस लाइट में 2 कलर थे, 3 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं। As soon as light which is composed of 2 different colors is incident and it is going inside a medium, right?
I have told you in theory, और हमने बहुत बार किया भी है, that refractive index for the of the same material is different for different colors. रेड के लिए अलग, ग्रीन के लिए अलग, वॉयलेट के लिए अलग, इसलिए तो डिस्पर्शन हो रहा था, राइट? डिस्पर्शन क्यों होता है? इसीलिए तो होता है। क्यों? क्योंकि हर एक कलर का स्पीड मटेरियल के अंदर चेंज हो जाता है। व्हाई? बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, because you know this, because you know this, refractive index is equal to C by V, speed of light in vacuum to that in medium, and you know this is equal to n lambda। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मैं इसको म्यू ही बोलता हूँ बेटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। हर एक कलर का वेवलेंथ अलग अलग होता है, हाँ, तो फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग अलग होता है। मतलब एज सुन एज लाइट विच इज कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर वेवलेंथ एंटर्स इनसाइड अ मीडियम, उसका स्प्लिटिंग होगा, तो स्प्लिटिंग होगा। तो एमर्ज होते वक्त तो 2 पॉइंट से ही एमर्ज होगा, लेकिन एमर्जेंस यहाँ पे होता है पैरेलल टू ईच अदर, है ना? तो ऑप्शन नंबर बी। तो पैरेलल कब नहीं होता है? फिर दो प्रिज्म का कॉम्बिनेशन आप लगाओगे, तो याद होगा हमने सीखा था डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन और डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन। So you may have different colors going in different direction only when you have two prisms, combination of two prisms। यहाँ पे ऐसा है क्या? तो प्रिज्म ही नहीं है, यहाँ तो क्या है? स्लैब है। हाँ, तो फिर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। So option number B is correct. So such kind of theory questions can also be asked. Okay, good. So we are stopping 8 minutes early because I have next class early today. So we'll continue this point onwards in the next session.